को सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ ये लड़का कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में जाने को। तो क्लास का होने के बाद फिर सारे स्टूडेंट मिस जाने के लिए बोल दिया एंड उसके बाद फिर मेरे को पर्सनली सर ने वेट करने के लिए बोला एंड वहाँ पे फिर वेट किया। लास्ट में मिस ऐसी सारी चीज़ें बताई ना अपने सर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर के कि मैं भी जब तुम्हारे एज में था तो ये सारी चीज़ों में मैं पढ़ा हुआ था। मिस बहुत सारा मोटिवेट किया एंड उसके बाद फिर अभी मैंने डिसाइड किया कि फाइनली अब आगे इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है एंड जब तक मैं अपने लाइफ में मैं अपना कैरियर अच्छे से सेटल नहीं कर लूँ। So welcome to Sonu Bhai. Thank you so much to be being here. And how does it feel? Yes, I am feeling very good. I am feeling very great to be being here. And to be really honest, I am telling it is a very good and fantastic session with us. Yes. And we'll go smoothly, so don't be nervous. So yes, without any, let's begin. So guys, which I'm talking about to you, the great personality around us. This is nothing, one and only. The person is Sonu Kumar Singh. So he is a good inspiration. Not the some people. It's actually a very lot of people we have in this college as well as in your native place also. So he is the great personality as well as the inspiration to most of the people. So we have the great session with us. So let's start. We have some questions we'll ask you and he will share with us your experience. So my first question to you, please could you tell something about yourself? So as you know, myself Sonu Singh and I am currently BTech final year student. Studying in mechanical department at Weltec University Chennai, and with this I have an YouTube channel. On that I am sharing class 12th related content and JEE related and also college related videos to help my juniors as well as share my own experience. Yeah, with this forward to moving, we have a second question with you. Could you tell me something about, you are from Bihar? Yeah, yes. Okay. So you are from Bihar. So what is the specialty of the Bihar which you like the most? So yeah. बिहार के बारे में जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि बिहार के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ही बैकवर्ड मीन्स स्टेट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप चाहे किसी भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम्स ले लो या तो फिर यूपीएससी हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, नीट हो गया, बिहार से ही आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा जितने भी टॉपर्स होते हैं अगर जो आउट ऑफ 10 देखें तो उसमें से लगभग 5 to 6 बिहार से आते हैं। बहुत ही ज़्यादा मीन्स सिलेक्शन जो है बिहार से होते हैं। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ एंड जितने भी बिहार के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। So yeah, this is a very good point. I want to share with you all the most of the person or students who are belong to from the especially Bihar, who's only clear the UPSC, because most of the people, if you want to see the 50 to 60%, I think maybe the 60% students will be belong from the Bihar only, because they are only having that the dedication or that the lot of consistency or the patience to complete or to make the success of the UPSC journey. So yeah, this is a very good thing, Sonu. So I am also feeling very proud to you. You are the best person. You are from also Bihar. You are also a very hard worker and currently you are working in your YouTube channel also. Yes. So yeah, I am also feeling with you very great you being with here. So yeah, Sonu, we have a next question for you. Are you ready? Yes, I am ready. Okay. So please share with you all, to us or to my viewers or my listeners, what is your embarrassing moment in your life which you can say in front of everyone? सो एक्चुअली मेरे लाइफ से रिलेटेड एक एम्बैरेजिंग मोमेंट ये है कि मैं जब क्लास 10th में स्टडी कर रहा था तो मैं क्या हूँ कि मैं अपने पापा जी से बहुत ही ज़्यादा मिस डरा करता था एंड मेरे पापा जी स्टडी सबसे यस बहुत ही ज़्यादा मिस डरता था। बचपन में बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार ये सब लगाना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मैं जब 10th में स्टडी कर रहा था तो उस टाइम क्या था कि मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, तो फ़ोन एक्चुअली मेरे रूम से मिस गायब हो गया था। तो उस चीज़ के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं अब कितना इस चीज़ को लेकर के मेरे पापा जी डांटने वाले हैं एंड पता नहीं क्या ही करेंगे। तो उस डर के कारण मैं क्या था कि मैं अपने होम टाउन से बिना बताए, मैं अपने पेरेंट्स को बिना बताए मैं किसी दूसरा टाउन में शिफ्ट हो गया था एंड किसी दूसरा टाउन में शिफ्ट होकर के मैं स्टडी को छोड़ करके मैं एक होटल में मिस रहने लगा था। मैं होटल में एज ए वर्कर मिस वर्क करने लगा था और 2 महीने तक मेरे पापा जी एंड मम्मी को, मेरे पूरे फैमिली को किसी को पता ही नहीं था कि आखिरकार एकाएक कहाँ से गायब हो गया। मेरे पापा जी का नंबर मेरे पास था, मेरे को याद था, तो उस नंबर पे मैंने कॉल किया एंड उसके बाद फिर मेरे फादर मिस कॉल रिसीव किया एंड उसके बाद फिर लगभग 2 से 3 महीनों के बाद मेरे पेरेंट्स को पता चला था
एंड उसके बाद फिर मतलब इस तरीके से माहौल बना हुआ था कि पूरा फैमिली में पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। तो ये मेरे लाइफ के लिए एक उसके बाद फिर मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील किया था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स तो खुद हमारे लिए ही ये सब करते हैं ना, जो भी डांट फटकार लगाना या कुछ रेगुलेशन अपने हमारे लिए ही स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं। तो ये मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं बहुत ही बैड फील करता हूँ इसको लेकर के। ओके, सो सोनू के पेरेंट्स जो थे, एक्चुअली ये बात एकदम क्लीन एंड कट एंड क्लियर समझ में आती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एज वेल एज पॉजिटिव थे। एक्चुअली एवरीवन पेरेंट्स हैविंग द पॉजिटिव टू योर टेकिंग योर चिल्ड्रन और समवन who loves mostly in the world. So if not, I am not talking about the parents only, I am talking about any you can say any who is the relationship in between the boys or from the girl side also. Everyone gets the positive to taking their heart one or the loved ones. So same like the Sonu also, the parents are very strict and positive to taking him, so that's why he did. So तुम बहुत guilty feel कर रहे हो, okay, yes, but it's not like this because our parents, जो हम लोग के parents होते हैं ना, वो हम लोगों को एक स्ट्रिक्ट और ट्रैक पे लाने के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के कहीं गलत रास्ते पे ना चलने लगे या कुछ ऐसा काम ना करना। अल्टीमेट हम लोग के अल्टीमेट हम लोग का पेरेंट्स का मेन मोटिव ही तो यही होता है ना कि हमारा बच्चा मींस कहीं कुछ गलत डायरेक्शन में नहीं चला जाए। तो इससे बच्चे की तो लाइफ वेस्ट होती है, बच्चे की लाइफ तो बेकार हो ही जाती है, साथ में पेरेंट्स को भी बहुत, मैं समझ रही हूँ, इंसल्ट फील होती है पूरे रिलेशनशिप में, पूरे रिलेटिव में। सो या माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, ओके, व्हाट्स योर ट्विस्ट मोमेंट इन योर लाइफ व्हिच चेंज योर लाइफ एक्सट्रीमली? या सो मेरे लाइफ का ट्विस्ट मोमेंट वो था जब मैं क्लास 10th में स्टडी कर रहा था। मैं एक ट्यूशन जाया करता था, फिर गर्ल्स से कोई फ्रेंडशिप नहीं थी। तो उस टाइम क्या था कि मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि काश मैं भी गर्ल्स से फ्रेंडशिप करता है। उस टाइम मैं क्या करता था कि मिस डेली एक लेटर लिख करके जाया करता था। तो वो क्या था कि मैं डेली लिख करके तो जाता था, लेकिन उतना मीन्स अंदर से हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं फाइनली उसे दे पाऊँ। तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था कि मैं जो अपने नीचे पैंट के पॉकेट में लेकर के जाया करता था, एंड उस दिन बाय मिस्टेकली क्या हुआ था कि मैं शर्ट के पैकेट में ऊपर में रखा हुआ था। तो जब मैं क्लास में बैठा हुआ था तो सर ऐसे ही मीन्स क्लासरूम में घूम रहे थे, तो उन्होंने मेरे पैकेट में ऐसे ही घूमते घूमते देख लिया। तो मेरे पॉकेट से लव लेटर को ले लिया, एंड उसके बाद फिर उस लव लेटर को उन्होंने पाया, एंड उसके बाद फिर हाँ उसके बाद फिर एक्चुअली यही मेरे लाइफ का ट्विस्ट मोमेंट था कि उस लव लेटर को लेने के बाद फिर मेरे सर मेरे फीलिंग को समझ गए, को सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ ये लड़का कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में जाने को है। क्योंकि उस टाइम मीन्स हम लोग के लाइफ में मेन जो होता है कि 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, तो हमारा कैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें तो जो है आपका अगर जो कैरियर सेटल हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है ठीक लगती है। तो क्लास का होने के बाद फिर सारे स्टूडेंट मिस जाने के लिए बोल दिया, एंड उसके बाद फिर मेरे को पर्सनली सर ने वेट करने के लिए बोला, एंड वहाँ पे फिर वेट किया। लास्ट में मीन्स ऐसी सारी चीज़ें बताई ना अपने सर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर के कि मैं भी जब तुम्हारे एज में था तो इस सारी चीज़ों में मैं पढ़ा हुआ था। मीन्स बहुत सारा मोटिवेट किया, एंड उसके बाद फिर अभी मैंने डिसाइड किया कि फाइनली अब आगे इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एंड जब तक मैं अपने लाइफ में मैं अपना कैरियर अच्छे से सेटल नहीं कर लूँ तब तक इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। सो वो एक मेरे लाइफ के लिए ट्विस्ट मोमेंट था। Okay, so I think that's a very interesting point to share with us your experience because as you know also guys, this is a very special or very important twist moment to most of the boys. I'm talking about this especially for the boys only because they only to do like this when they came into the 10th standard or the 12th standard. Or it is a natural to do the mistakes, but to learn from the mistake is a very important. Yes, it is very important. Yeah. So this is a very good experience to share with us. Yeah, really. Me too. I am actually for this point. I am also learned a very lot of things because till now these things what you share with us I didn't happen to my life. Hope in future maybe not. Don't waste much time. We'll go further questions. So my next question is, okay Sonu, please tell me about your strength. What is the strength to make you powerful as well as to make or different from the crowd or the people? तो या मैं अपने स्ट्रेंथ की बात करूं तो आई थिंक मैं जहां तक अपने आप को फील करता हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एज वेल एज सेल्फ लर्नर हूं। क्योंकि मेरे को अगर जो कोई भी स्किल्स ये सब सीखनी होती है ना, तो मैं खुद से यूट्यूब पे रिसर्च करके या तो फिर गूगल से या तो फिर कहीं से भी मैं खुद से बहुत ही ज़्यादा मिसू से रिसर्च करके एंड जितना कम टाइम में मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को सीख लूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर तो ये होती है कि उनको सीखना बहुत कुछ होता है, लेकिन
वो कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो फिर किसी ना किसी चीज़ का इस टाइम का वो वेट कर रहे होते हैं कि मेरे लाइफ में एक अच्छा टाइम आएगा तब उस टाइम में उन चीज़ों को सीखूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आप कुछ भी चीज़ों को सीखना चाहते हो, कुछ भी स्किल्स आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप उस स्किल्स को, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, आप यहाँ से लॉट्स ऑफ स्किल्स को आप खुद से सीख सकते हो। ठीक है, आपको अगर आप सेल्फ लर्निंग हुए वाकई में रियलिटी में अगर आपके अंदर क्वालिटी एक खूबी है, बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ लर्न कर सकते हो। एंड एज वेल एज मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मेरे को जो भी स्किल सीखनी होती है मैं उस स्किल्स को लेता हूँ, एंड जितना कम टाइम में मैं चाहता हूँ कि हार्ड वर्किंग के थ्रू मैं कम से कम टाइम में उस स्किल्स को सीख लूँ, कंप्लीट कर लेते। यस, hard work ke through. yes. Okay, so that's a pretty good what you said. And my next question is, what's your weakness? वीकनेस की अगर जो बात करूं तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक मानता हूं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें अगर जो कोई दूसरा लोग मेरे साथ कुछ भी मिसबिहेव करते हैं या तो फिर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि अपने दिल पे मीन्स अपने आप को नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी मैं उस बातों में इतना उलझ जाता हूँ ना खुद में कि उतना मतलब होना नहीं चाहिए। एंड लोगों का तो ये होता ही है कि आप चाहे जितना भी अच्छा हो, कुछ ना कुछ कमियां जो है आप में निकालेंगे ही। आप कितना भी अच्छा, लोगों का काम ये है। तो ये क्वालिटी है जो कि मैं इन सभी में बहुत ही ज़्यादा मीन्स अपने आप को इमोशनली जो है वीक कर लेता हूँ। Yeah, so that's your quality, but I want to say something to you. You need to overcome your weakness, emotion, because you need to make you strong in emotionally. Feel you too. एक्चुअली अपने आप में मीन्स स्ट्रेंथ को ही ज़्यादा देखना है। अगर जो कोई लोग हमारे बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो वो हमारे को पता है, पॉजिटिव ले सकते हो, और अपनी जो इमोशनली जो तुम लोगों का इमोशनली जो वीकनेस है तुम्हें उसको ओवरकम भी कर सकते हो। क्योंकि लोगों की गलत चीज, लोगों का देखो काम क्या होता है, गलत बातें बोलना, उनसे तो कुछ होगा नहीं। जो सामने वाला बंदा कर रहा है उसे भी एकदम वो ऐसा मतलब बात ही करता है कि वो इमोशनली हर्ट हो जाता है, वो सोचता है कि काम को छोड़ देगा, बट ऐसा नहीं है। तो यू नीड टू बिकम अ इमोशनली स्ट्रांग आल्सो। सो या, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what's your career path or what's your future planning in next 5 years? या सो मेरा फाइनल जो ड्रीम है वो, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अभी करंटली बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, एंड इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे कि मैं जेई नीट से रिलेटेड एंड कॉलेज लाइफ से रिलेटेड में कंटेंट शेयर करता हूँ। लेकिन मेरा जो फाइनल ड्रीम है, फाइनल जो गोल है, वो पब्लिक स्पीकर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइक संदीप माहेश्वरी, लाइक विवेक बिंद्रा, इस टाइप का कुछ बनना है। क्योंकि मेरा बचपन से ही एक सपना था ना कि मेरे को मिस जॉब बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है कि जिसमें सेटल होकर के लाइफ गुजारना पड़े। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारा नॉलेज को गेन करूं, एंड देन आफ्टर मैं अपने नॉलेज को, मैं अपने एक्सपीरियंस को बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करूं, जिससे कि यूथ को एज वेल एज बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिटेड हो। मैं जॉब टेकर नहीं बल्कि मैं जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने खुद का घर के नहीं बल्कि लाखों लोगों का हेल्प हो सके, बल्कि हज़ारों फैमिली का हेल्प हो सके। सो या मेरा फाइनल अल्टीमेट गोल यही है कि मेरे को एक बिग मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकर बनना है। या So that's a pretty sad to you, Sonu. I am a really hand applause to you. Thank you. You want to become a job provider, not yes. a job seeker. No. Yeah, that's a very good point. So guys, that's a very good point to said. Very well said, Sonu. So yeah, I'm also personally like to this. Yes, thank you. Okay. So next question is, I want we have some rapid fire game with you. So I will ask you some question with two options. You need to answer them within 5 seconds. Okay, so, sure. Ready? Yes, sure. Okay. Ready. So let's start. So yeah, rapid fire with Sonu Singh. So let's start. So my first question is, you like mountains or rivers? Mountains. Okay, well said. Yes. You like land or sky? A sky. You choose parent or God? God. Okay, that's interesting. Next, you want to become something. Actually, I'm talking about your next life. You want to become in your next life is girl or boy? Boy, obviously. Okay. Next question is, you are the person to choose one, spiritual or hard worker? A spiritual, obviously. Okay. You are the person want to choose honest or smart? Honest. And my last question is, will you promote my channel to your channel? Yes, sure. I will permit it. Okay, so that's very good to me. They will promote my channel to your channel. So don't forget to guys to watch this video. Yes. Yeah. My next questions to you. Please share with us what is your Unacademy journey. या अनअकैडमी एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मीन्स कॉन्टेक्ट किया था,
मैं जब फाइनली थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में था तो उस टाइम मेरा चैनल जो है ग्रोइंग स्टेज में था एंड उस टाइम 2 to 3,000 एवरेज व्यूज आ जाता था। तो उसी के थ्रू मेरे चैनल में अबाउट सेक्शन में जो ईमेल दिया हुआ रहता है उसी के थ्रू मेरे ईमेल पे अनअकैडमी की तरफ से ईमेल आया एंड देन आफ्टर अनअकैडमी पे मेरे को एज ए प्रोडक्ट मैनेजर मीन्स मेरे को हायर किया गया। तो वहाँ पे क्या है कि मैं अनअकैडमी के जो भी ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं IIT JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करता हूँ, जिसके बेसिस पे मेरे जितने भी ऑडियंस होते हैं वो अनअकैडमी के कोर्सेस को मीन्स परचेस करते हैं। देन आफ्टर वहाँ पे उनको हेल्प होता है एंड ऑल्सो मैं वहाँ पे अनअकैडमी पे मीन्स लाइव सेशन ये सब लेता हूँ, जहाँ पे कि JEE से रिलेटेड स्ट्रेटजी हो गया, गाइडेंस हो गया, कॉलेज काउंसलिंग ये सब से रिलेटेड हो गया, वो सब मैं वहाँ पे लाइव सेशन लेता हूँ। सो या दिस इज़ माई अनअकैडमी जर्नी। Okay, so that's interesting you share with us. And so Sonu, yeah, my last question to you, could you give some message to in my channel viewers and my listener? Could you want to say something? Please say 2 words. या सो आप लोगों को मैं सबसे बिगेस्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखिए लाइफ में सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ, लेकिन सक्सेस के लिए ना आपके पास ये जो 2 इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपको ज़िंदगी के, चाहे आप जितना भी बड़े सक्सेस चाहते हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। सबसे फर्स्ट आपको बड़ा सपना, बिग ड्रीम्स, बड़ा सपना आपके पास होना ही होना चाहिए। आप इन जनरल लोगों को अगर जो देखेंगे ना तो इन जनरल लोग बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट किसी भी तरह से मेरा एक छोटा मोटा जॉब हो जाए एंड उसके बाद फिर मैं किसी तरह से अपनी लाइफ को बिता दूँ, ठीक है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, ये लाइफ जो आपको मिला है वो लाइफ आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं मिली है, ठीक है। आप इस लाइफ को एज ए इस तरीके से देखें कि मैं अपने हेल्प नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का भी मैं हेल्प कर सकता हूं, उनको जॉब बल्कि सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बन सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बड़ा सपना तो होना ही चाहिए। अगर जो आप बड़ा सपना देखोगे नहीं तो आप मीन्स उस रास्ते के लिए आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एंड सेकेंड, उस बड़ा सपना को पाने के लिए आपको हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको बड़ा सपना अगर जो देख भी लेते हो तो उसके लिए मेन जो पॉइंट होता है वो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। विदाउट हार्ड वर्क आप जो बड़ा सपना देखो वो भी बिल्कुल भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो बिग ड्रीम्स एंड hard working and consistency is a very important thing. Yes. To do to achieve reach your that, final. Yes. Yeah, reach that goal. Yes. Okay. So yeah, very interesting, and this point also you covered a very well, Sonu. So thank you so much to being with here. Yes, and that's a very good, nice, and good evening to with us. And so guys, yeah, that's all about the some experience or some tips for all my viewers and my listeners to my channel. And this is a very interesting session with us. Hope you like this video. And so guys. And this session also I will upload on my YouTube channel also. Yeah, sure. Why not? You can also upload in your channel too. So guys,